کھیلنے کودنے کی عمر میں مریم کا نکاح احمر ہمدان سے کر دیا گیا، جو ایک 25 سالہ کامیاب بزنس مین تھا۔ یہ نکاح محض اس کی مجبوری تھی، پر جب وہ مریم کو اپنے ساتھ شہر لایا تو اسے بالکل فراموش کر گیا کہ ملازم کی حوث بری نظریں موقع کی تلاش میں تھے۔ موقع پاتے ہی وہ مریم کو برباد کر چکا تھا۔ سچ جاننے کے بعد احمد نے ملازم کو ٹھکانے لگاتے مریم کو واپس گاؤں بھیج دیا، کیونکہ وہ ایسی لڑکی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ پر جب 4 سال بعد وہ ضروری کام سے گاؤں گیا اور اس کی نظر نماز پڑھتی مریم پر پڑی تو پتھر ہو گیا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اتنی معصومیت اور حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوانہ ہوتا یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی مریم ہے جس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ جو گاؤں کی کچی گلیوں میں کہیں کہیں چراغ چل رہے تھے، مگر ہمدان حویلی کے آنگن میں روشنی کچھ زیادہ ہی تھی۔ صحن میں بڑے بڑے مرد جمع تھے جن کے چہروں پر سنجیدگی کے رنگ بکھرے تھے۔ خواتین اندر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہی تھیں، جبکہ صحن کے کونے میں ایک چھوٹی سی دبکی ہوئی بچی سہمی کھڑی تھی۔ مریم، یہ نکاح ہو کر رہے گا، نبیلہ بیگم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس پر کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ احمد، جو اس وقت صرف 13 سال کا تھا، کرسی پر بے زاری سے بیٹھا تھا۔ اسے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ نکاح ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ تو خود کو اس وقت کھیل کے میدان میں تصور کر رہا تھا، جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوتا۔ سب کچھ چند سال پہلے شروع ہوا تھا۔ مریم کے والد بابر شاہ گاؤں کے ایک عام مگر خوددار آدمی تھے۔ ان کی زمین زیادہ نہیں تھی، مگر وہ اپنی عزت کو کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے، روٹی کم کھا لیں گے مگر عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دوسری طرف ہمدان خان، احمد کے دادا، اس گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کی دولت، روب اور طاقت کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے احمد کا والد عمران ہمدان سب سے بڑا تھا۔ ایک دن کسی زمین کے تنازع پر بابر شاہ اور عمران ہمدان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ دونوں فریقوں میں بات بڑھ گئی اور بات اتنی بگڑ گئی کہ بابر شاہ کے چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر عمران پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ایک بڑے طوفان کی بنیاد بن گیا۔ ہمدان خان کی غیرت کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ کوئی عام آدمی ان کے بیٹے پر ہاتھ ڈالے۔ گاؤں میں کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے دشمنی مول لے، مگر بابر شاہ ایک بے باک آدمی تھا۔ اسی دن ہمدان خان نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بے عزتی کسی نہ کسی طرح مٹانی ہوگی، اور ان کے لیے سب سے آسان حل یہ تھا کہ بابر شاہ کی بیٹی کو اپنے پوتے کی بیوی بنا کر اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ مریم کی ماں زلیخا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ ظلم ہے بابر، مریم ابھی بچی ہے، زلیخا نے التجا کی، مگر بابر شاہ بے بس ہو گیا۔ یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے زلیخا، اگر ہم نے انکار کیا تو وہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ مریم کو ان کے گھر میں جانا ہی ہوگا، اور یوں فیصلہ ہو گیا۔ جب نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے بابر شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مجبور تھے۔ بیٹی کو بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اگر میں نہ مانا تو میرا خاندان برباد کر دیا جائے گا۔ مریم کچھ سمجھ نہ پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس اپنی ماں کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی، باپ کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی، اور ان اجنبی نظروں کو جو اسے عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ جب نکاح کے الفاظ پڑے گئے تو قاضی نے 3 بار پوچھا، کیا تمہیں احمد ہمدان کے نکاح میں قبول ہے؟ مریم کی زبان جیسے پتھر ہو چکی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کہنا ہے۔ ماں نے پیچھے سے اس کا ہاتھ دبایا، اشارہ دیا کہ بول دے۔ قاضی نے نکاح پڑھایا اور مریم کا نام لے کر احمد سے اجازت طلب کی۔ احمد نے ایک سرسری سا قبول ہے کہا اور دوبارہ اپنی خیالی دنیا میں کھو گیا۔ یہ نکاح ایک معصوم لڑکی کے خوابوں اور ایک بے پرواہ لڑکے کے بیگانہ پن کا بندھن تھا۔ مریم کو نکاح کا مطلب تو معلوم تھا، مگر اس کے لیے صرف ایک لفظ تھا، شوہر۔ مگر شوہر کیسا ہوتا ہے، وہ اس سوال کا جواب نہیں جانتی تھی۔ یوں کئی سال بیت گئے، وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ احمد بڑا ہوتا کیا۔ احمد کی شخصیت ایسی تھی کہ جہاں جاتا نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ لمبا قد، کشادہ ماتھا، گہری آنکھیں اور مضبوط جسمانی ساخت رکھنے والا ایک دلکش نوجوان تھا۔ اس کا انداز باوقار مگر بے حد مغرور تھا، جیسے دنیا کی کوئی شے اس کے لیے اہم نہ ہو۔ وہ لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن تھا، اس کی ایک جھلک ہی دلوں میں طوفان برپا کر دیتی، مگر وہ خود کسی کی آنکھوں میں ٹھہرنے کا قائل نہ تھا۔ ہر محفل میں اس کی موجودگی ایک سحر طاری کر دیتی، مگر اس کے سرد رویے اور بے نیازی نے اسے مزید پرسرار بنا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہیں، مگر اس سے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ دولت، شہرت اور رتبے نے اس سے ایک ایسا خود پسند آدمی بنا دیا تھا جو جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدہ مسکراہٹ رہتی، جیسے کوئی بھی چیز اسے حیران نہیں کر سکتی۔
मोहब्बत जैसे लफ्ज पर वो हल्का सा मुस्कुरा देता, जैसे ये कोई बचकाना ख्याल हो जिसकी इसकी दुनिया में कोई जगह ना हो। मरियम अब 17 साल के हो चुके थे। इसके मासूम चेहरे पर वक्त की सख्ती ने कुछ संजीदगी का रंग चढ़ा दिया था, मगर आंखों में अब भी एक उम्मीद की रोशनी थी। उसकी बड़ी गहरी आंखें किसी खामोश कहानी की तरह थी, ऐसे कि जो देखे वो इनमें खो जाए। इन आंखों में वक्त की सख्तियों ने हल्की सी संजीदगी जरूर भर दी थी, मगर उनकी चमक अब भी कायम थी, जैसे किसी सोए हुए ख्वाब की आखिरी किरण। मरियम के लंबे घने बाल जब हवा में लहराते तो ऐसा लगता जैसे रात की स्याह चादर पर सितारे झिलमिलाने लगे हैं। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो नहायत दिलकश मगर पुरसरार लगती, जैसे वो किसी ऐसी कहानी का राज छुपा रही हो जो अभी मुकम्मल ना हुई हो। इसका सरापा एक ऐसी नरमी और लताफत का नमूना था जो न सिर्फ दिलों को लभाता बल्कि रूह को भी सुकून देता। वो बेहद हसीन थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसके अंदर छुपी हुई वो रोशनी थी जो हर तारीकी में उम्मीद की किरण बनकर चमकती थी। एक दिन अचानक नबीला बेगम ने फैसला सुनाया, अब मरियम को अहमर के साथ शहर भेज देना चाहिए। वो इसकी बीवी है और अब उसके साथ रहना होगा। क्यों नबीला बेगम बारात लेने गांव जल्द ही आने वाली थी। सुबह के हल्के उजाले में गांव की गलियों में ताज़ा मट्टी की महक फैली हुई थी। कहीं दूर मुर्ग की बांग गूंजी और मरियम की आंख खुल गई। उसने पलकें झपकाई, अपने नन्हे हाथों से आंखें मली और चंद लम्हों के लिए छत को घूरने लगी। आज की सुबह बाकी सुबह से मुख्तलिफ थी। आज वो इस कमरे में आखिरी बार जाग रही थी जिसमें उसने अपनी छोटी सी दुनिया बसा रखी थी। कुछ फासले पर बैठी उसकी माँ ने खामोशी से चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। आंखों में एक अजीब सी वैरानी थी। उसने पलटकर मरियम को देखा जो अभी तक बिस्तर पर बैठी बेदहानी में अपने नंगे पैरों को देख रही थी। मरियम उठ जा बेटा, आज तेरी रुखसती है, मरियम की माँ ने नरमी से कहा, मगर इस आवाज में खुशी कम बोझ ज्यादा था। मरियम ने नजरें उठाकर माँ को देखा। रुखसती? उसने जेरे लब दोहराया और मुस्कुरा दी। घर के बाहर खवातीन शादी की रवायती गीत गा रही थी, मगर उनकी आवाज में वो चहक नहीं थी जो आमतौर पर किसी दुल्हन की शादी पर होती है। मरियम इन आवाज़ों को सुनती रही, मगर उसके दिल में एक भी खुशी की लहर पैदा नहीं हुई। ये फैसला सुन के मरियम का दिल अजीब सी बेचैनी में घिर गया। वो एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ उसके शोहर ने कभी उसे कबूल नहीं किया था, जहाँ उसके लिए सिर्फ तन्हाई थी। अहमर के लिए ये सब गैर ज़रूरी था। ये शादी सिर्फ एक मुआहिदा था, एक बोझ जो उसे अपने दादा के हुक्म पर उठाना पड़ा था। उसने एक बार भी मरियम को देखने की जहमत नहीं की। जब मरियम उसके साथ शहर आई तो उसने एक नज़र भी उस पे ना डाली। ये मेरा कमरा नहीं, मैं कहाँ रहूंगी? मरियम ने दबे दबे लहजे में पूछा। जहाँ चाहो, मगर मेरे करीब मत आना, अहमर ने सर्द महरी से जवाब दिया। वो इसके लिए ना बीवी थी ना कोई और रिश्ता, वो सिर्फ एक बेकार जिम्मेदारी थी जिसे वो नज़रअंदाज करने में ही आफियत समझता था। नए माहौल में बड़ी इमारतों और रोशनियों के दरमियान मरियम खुद को बेइंतहा तन्हा महसूस कर रही थी। अहमर की बेरुखी और लापरवाही उसके दिल पर हर दिन नया जख्म लगाती, मगर वो चुप थी, खामोश थे। मुलाजिम सलीम अक्सर उसे देखकर मुस्कुराता, उसके करीब आने की कोशिश करता, मगर वो कभी कुछ न बोलती। वो जानती थी कि ये दुनिया उसके लिए आसान नहीं थी, मगर वो हार मानने के लिए नहीं आई थी। ये रुखसती एक बंधन था, मगर ये उसे एक सजा लग रहा था। शहर की रोशनी अपने अरूज पर थी, मगर मरियम के लिए इस बड़े घर के अंदर बस अंधेरा ही था। ये रोशनियों का शहर उसके लिए अजनबी था, और अहमर जिसका नाम उसके साथ जुड़ा था उसके जिंदगी में ना होने के बराबर था। अहमर की दुनिया अलग थी। वो अपनी कारोबारी माहितों में मसरूफ रहता, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शिरकत करता, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने खाता और जिंदगी को अपनी शराइत पर गुजारता। इसके नज़दीक मरियम कोई अहमियत नहीं रखते थे, ना वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का इरादा रखता था। मरियम दिन भर हवेली के वसी और इस कमरों में घूमते, मुलाजमों की खामोशी उस पर बोझ बनती और अहमर की बेरुखी उसे अंदर से अंदर तोड़ देती। वो गांव की एक मासूम लड़की थी जो मोहब्बत और अपनायत के लिए तरस रही थी, मगर यहाँ कोई भी उसका हाल पूछने वाला न था। मगर एक शख्स था, सलीम। सलीम अहमर का सबसे वफादार नौकर था, मगर उसकी वफादारी सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक उसकी अपनी हिवस की तस्कीन मुतासिर न हो। वो जानता था कि मरियम यहाँ बेबस है, उसका कोई सहारा नहीं, और अहमर को इसकी कोई परवाह नहीं। हर दिन सलीम की नजरें मरियम पर जमी रहती। वो अक्सर झूठे बहानों से इसके करीब आने की कोशिश करता, कभी पानी लाने का कहता, कभी किचन में मदद की पेशकश करता, कभी उसके सामने गैर ज़रूरी तौर पर खड़ा रहता। बीबी जी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिला झिझक मुझे कहिएगा, उसने एक दिन नरमी से कहा, मगर उसकी आंखों में चमक मरियम को अजीब लगी। मरियम ने नजरें झुका ली, मगर दिल में एक बेचैनी सी उतर आई। अहमर के साथ जिंदगी गुजारने का जो ख्वाब मरियम ने देख रखा था वो कब का चकनाचूर हो चुका था। वो दिन रात उसके लिए दुआ करती
कभी सोचती कि शायद वो बदल जाए, शायद एक दिन वो इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाए, मगर वो सिर्फ एक खुशफहमी थी। एक रात जब अहमद देर तक घर न आया तो मरियम अकेली अपने कमरे में बैठी रही। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो अपने माजी के दिनों को याद कर रही थी, जब गांव में जिंदगी कितनी सादा थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मरियम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन? उसने धीरे से पूछा। बीबी जी, मैं सलीम हूँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मरियम को एक पल के लिए झिझक महसूस हुई, मगर वो अकेली थी, किसी से बात करने को तरस रही थी। क्या बात है? दरवाज़ा खोलिए, आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। मरियम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सलीम की नजरें एक लम्हे के लिए चमकी। बीबी जी, आप इस घर में बिल्कुल तन्हा हैं। अहमद साहब को तो कोई आपकी परवाह ही नहीं। मरियम का चेहरा जर्द पड़ गया। ये तुम कह रहे हो? सलीम आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाने लगा। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपको मोहब्बत की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। मरियम को जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया हो, वो पीछे हटने लगी, मगर कमर दीवार से जा टकराई। दूर रहो सलीम, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मगर सलीम के इरादे गंदे थे। रात गुजर गई, मगर मरियम की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जब अहमद सुबह घर आया तो हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। मुलाजिम आंखें चुरा रहे थे। मरियम अपने कमरे में बंद थी और सलीम वो अपने काम में मसरूफ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नबीला बेगम को जब कुछ शुबा हुआ तो उन्होंने मुलाजमों से पूछा, रात को क्या हुआ था, मगर कोई जवाब न दे सका। ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं रह सका। जब अहमद को हकीकत मालूम हुई तो उसकी आंखों में तूफान आ गया। सलीम, उसका गरूर, उसकी गैरत, सब कुछ भड़क उठा। वो सीधा सलीम के पास पहुंचा और बगैर कोई सवाल किए उसके चेहरे पर मुक्का मारा। तुमने ये कैसे सोचा? सलीम गिरता पड़ता रहा, मगर अहमद को रहम नहीं आया। मगर सजा किसकी? जब अहमद ने अपनी अना की आग में सलीम को ख़त्म कर दिया तो इसने एक और फैसला भी कर लिया। मरियम को भी उसके घर से निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता, उसने सर्द लहजे में कहा। मरियम की आंखें खाली थीं। उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख के बाद जिस शख्स को उसका सहारा बनना था वही उसे ठुकरा रहा था। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा करो, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। मगर अहमद ने एक नज़र भी उस पर ना डाली। उसके नज़दीक मरियम एक बदनाम लड़की थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कसूरवार कौन था। वो मरियम को छोड़कर चला गया। गांव की हवाएं सख्त थी और वहां के लोग जुबानों से काटने में माहिर थे। जब मरियम को वापस भेजा गया तो सबने एक ही कहानी घर ली, ये शहर से बदनाम होकर वापस आई है। लेकिन मरियम कमजोर नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को मजलूम नहीं बनने देगी। सूरज की तेज किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर बिखरी हुई थी। धूल उड़ती तेज हवाओं के साथ इधर उधर बिखरती जा रही थी, जैसे ये जमीन भी बेचैन हो। मरियम जैसे एक गुनाह की चादर में लपेटकर गांव वापस भेज दिया गया था, आज उसी गांव की दहलीज पर खड़ी थी जहां कभी उसका बचपन हंसी खुशी गुजरा था। मगर आज ये जगह उसके लिए वैसी न रही। जब वो अपने घर पहुंची तो माँ की आंखों में आंसू थे, मगर वो चुप थी। दरवाजे की चौखट पर खड़े बाप ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने जबत को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। बेटे अंदर आ जाओ। ये जुमला कहने में कितनी हिम्मत लगी होगी, ये मरियम के बाप के झुके कंधों से वाजिया था। माँ ने उसे गले लगाया, मगर उसमें पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी। वो छुप छुप कर आंसू बहा रही थी, मगर जुबान खामोश थी। मरियम समझ गई कि यह खामोशी उसके लिए एक नई आजमाइश बनने वाली है। गांव की गलियां कभी उसकी अपनी हुआ करती थी, मगर अब हर नज़र उसे नोच रही थी। वो जहां जाती सरगोशियां उसके पीछे साया बन जाती। वो शहर से वापस आई है। हाँ वही है, सुना है शोहर ने निकाल दिया है। अरे निकालने की नौबत ही क्यों आई? यकीनन कुछ ऐसा किया होगा। होशियार रहना, अपनी लड़कियों को इसके करीब न जाने देना। मरियम ये सब सुनती, मगर उसका दिल सख्त हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ बाजार जाती, मगर दुकानदार नजरें चुराते, जैसे वो कोई ऐसी चीज हो जिसे हाथ लगाने से वो भी नापाक हो जाएंगे। गली के किनारे बैठा फारूक शाह ये सब खामोशी से देख रहा था। वो गांव के सबसे बेबाक मगर समझदार शख्स के तौर पर जाना जाता था। वो अक्सर मजाहिया बातें करता। आज उसे भी मरियम की हालत ने रुला कर रख दिया था। वो दिल से मरियम को बेटी मानता था और हमेशा उसके लिए दुआ करता था। एक दिन जब मरियम रास्ते से गुजर रही थी तो एक औरत ने तंजिया लहजे में कहा, शहर का गंद गांव में वापस आकर हमें भी खराब करेगी। मरियम ने पहली बार नजर उठाकर इस औरत को देखा। आपको कैसे यकीन है कि गुनाह मेरा था? वो औरत हक्का बक्का रह गई, मगर अपनी अना की खातिर बोली, अगर गुनाह तुम्हारा ना होता तो शौहर ने छोड़ा क्यों? मरियम के दिल में एक ठेस उठी। फारूक शाह ने यह सब सुना और जोर से कहका लगाकर कहा, अरे बहन, तुम्हें कैसे पता कि पानी कहाँ से गंदा हुआ? तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है या बस गांव की गपशप ही हकीकत है? औरत ने दांत पीसे मगर चुप रही। मरियम ने फारूक शाह के चेहरे पर शुक्रिया भरी नजर डाली, मगर वो बस हंसता रहा।
जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। रात को मरियम जब अपनी माँ के पास बैठी तो वो जब्त न कर सकी। बेटी, लोग सच कहते हैं या झूठ, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर एक लड़की के पास इज्जत ही सब कुछ होती है। मरियम ने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया, माँ, इज्जत गुनाह से नहीं छीनी जाती, बल्कि लोगों की जुबानों से छीनी जाती है। अगर मैं झुक जाऊं तो क्या लोग चुप हो जाएंगे? माँ की आंखें नम थी, मगर वो खामोश हो गई। मरियम जानती थी कि उन्हें जवाब नहीं बल्कि वक्त चाहिए। मरियम ने फैसला कर लिया था कि वो उस बेबसी में मजीद नहीं जिएगी। गांव के मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मुअल्लिमा की जरूरत थी। मरियम ने इस काम के लिए खुद को पेश कर दिया। पहले पहल मदरसे के मुंतजमीन झिझक रहे थे, मगर फारूक शाह के एक जुमले ने सबको चुप करवा दिया। अगर नेक काम करने का हक सिर्फ बेदाग लोगों को दिया जाए तो ये दुनिया हमेशा बदकिरदार लोगों के हाथ में रहेगी। यूं मरियम की नई जिंदगी शुरू हो गई। 4 साल बाद एक दिन अहमद हमदान गांव आया। उसे यहाँ एक जमीन खरीदनी थी जो उसके बिजनेस के लिए जरूरी थी। अहमद हमदान के लिए गांव की जमीन अब सिर्फ एक कारोबारी जरूरत थी। वो एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव आया था जहां उसे जमीन खरीदनी थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था कि ये वही जगह है जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसकी जड़ें थी, मगर वो खुद को इन जज्बात से आज़ाद कर चुका था। एहसासात ये सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसके लिए बस पैसा, ताकत और इज्जत ही सब कुछ थी। गाड़ी जब हवेली के करीब रुकी तो उसने एक सरसरी नजर गांव की तरफ दौड़ाई। 4 सालों में कुछ ज्यादा नहीं बदला था। वही तंग गलियां, वही पुरानी हवेलियां, वही लोग जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में झांकने में मसरूफ रहते थे। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। उसे यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई शौक नहीं था। वो चौधरियों के साथ जमीन की खरीदारी पर बात कर रहा था जब उसकी नज़र अचानक मस्जिद के अहाते में जा ठहरी। वहाँ एक औरत सफ़ेद लिबास में बच्चियों को सबक सिखा रही थी। उसकी चादर बिल्कुल साफ सुथरी थी, अंदाज बावकार था और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और वकार था। अहमद ने नासमझी के आलम में नजरें घुमाकर दोबारा उस पर मरकूज कर दी। ये कौन थी? दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। उसका दिमाग उसे चीख चीख कर रोक रहा था कि वो ज्यादा न देखे, मगर उसकी आंखें जैसे किसी जादू में कैद हो चुकी थी। जब उस औरत ने चेहरा घुमाया तो अहमद का जिस्म साकित हो गया। ये मरियम थी। अहमद को लगा जैसे वक्त एक झटके से 4 साल पीछे चला गया हो। ये वही मरियम थी जिसे उसने खुद धुतकारा था, जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया था, मगर वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। 4 साल पहले वो एक मासूम और बेबस लड़की थी जिसे दुनिया की जालिम नजरें कुचल रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो अहमद ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी चाल में अजब सा एतमाद था, जैसे वो खुद को किसी का मोहताज नहीं समझती। वो लोगों के तानों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी जी रही थी। अहमद के दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक लम्हे में अपने वजूद से मिटा दिया था। ये वही मरियम थी जिसे उसने गुनाह की अलामत करार दे के छोड़ दिया था। तो फिर वो इतनी बावकार और पुरसुकून क्यों नजर आ रही थी? अचानक यादों का एक तूफान उसके दिमाग में पलट आया। वो रात जब सलीम का गुनाह का पता चला था, वो लम्हा जब उसने गुस्से में मरियम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, वो दिन जब वो अपने फैसले पर मुहर लगाकर शहर वापस चला गया था बगैर पीछे मुड़कर देखे। उसे लगा था कि मरियम तबाह हो जाएगी, कि वो इस गांव की जिंदगी में खत्म हो जाएगी, कि उसके लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी, मगर वो गलत था। अरे मियाँ, क्या देख रहे हो? अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने अहमद को हाल में वापस खींच लिया। अहमद ने चौंक कर देखा तो फारूक शाह अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराता खड़ा था। कुछ नहीं। अहमद ने नजरें चुरा ली। फारूक शाह ने कहका लगाया, कुछ नहीं? हाँ, जब इंसान 4 साल बाद किसी को देखकर यूं साकित खड़ा रह जाए तो उसे कुछ नहीं कहते साहब। अहमद ने उसे घूरा, मगर फारूक शाह हंसता ही रहा। कितने साल हो गए अमर मियाँ? 4। वो आंखें मारते हुए बोला, 4 साल पहले जिसे तुमने यूं छोड़ दिया था जैसे पुराना कपड़ा, आज वो तुम्हें देखकर भी पलट कर नहीं देख रही। कैसा महसूस हो रहा है? अहमद खामोश रहा। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि कैसा महसूस हो रहा है। मरियम को अहमद के वहां होने का एहसास हो गया था, मगर उसने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नजर नहीं उठाई। ना कोई झिझक, ना कोई शर्मिंदगी और ना कोई खौफ। वो पहले की तरह सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। अहमद के दिल में एक अजीब सी खलिश ने जन्म लिया। ये कैसे हो सकता था? वो कैसे यूं बदल गई थी? अहमद हमेशा यही समझता आया था कि औरत कमजोर होती है, कि एक दफा ठुकराने के बाद वो जिंदगी में कभी संभल नहीं सकती, मगर आज मरियम की मजबूती ने उसके नजरियात हिला के रख दिए थे। अहमद हमदान के लिए 4 साल जैसे पलक झपकते ही गुजर गए थे। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। जिंदगी में सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था, मगर गांव में आते ही जैसे वक्त रुक गया था। मरियम
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस लड़की को दोबारा देखेगा, और अगर देखेगा भी तो वो इतनी पुरवकार, इतनी मुतमईन और मजबूत नजर आएगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मरियम थी जिसे उसने धुतकार दिया था। वो तो समझ रहा था कि उसके बगैर वो बिखर जाएगी, मगर यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। अब वो मरियम के करीब जाना चाहता था, मगर क्या वो इससे माफ कर देगी? अहमर के कदम बेख्तियार मस्जिद के अहाते की तरफ बढ़ने लगे। वो सोच नहीं पाया था कि उसे क्या कहेगा। वैसी एक अनजानी कशिश उसे खींच रही थी। मरियम बच्चियों को पढ़ा रही थी, उसके लब हल्के से हिल रहे थे, मगर अहमर की समाज जैसे बंद हो चुकी थी। वो सिर्फ उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था, उसके अल्फाज की गूंज नहीं सुन रहा था। जब मरियम ने नजरें उठाई तो वो एक लम्हे के लिए ठटक गई। अहमर, उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। मरियम ने एक पल भी अपनी निगाहों में हैरत या माजी की तकलीफ को जगह नहीं थी। वो पुरसकून थी, बिल्कुल वैसे जैसे 4 सालों में उसने खुद को बनाया था। अहमर कुछ कहने ही वाला था कि मरियम ने नजरें मोड़ ली और अपनी बच्चियों की तरफ मुतवज्जा हो गई, जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। यह अहमर के लिए एक सख्त धचका था। वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। अहमर ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, मगर उसके अंदर जैसे तूफान बरपा था। वो एक लम्हा और वहां खड़ा नहीं रह सका। वो तेजी से पलटा और हवेली की तरफ बढ़ गया, मगर ज़हन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मरियम ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ये ख्याल ही उसके गुरूर को तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो हमेशा से हर चीज़ पर इख्तियार रखता आया था, मगर आज वो एक बेख्तियार शख्स की तरह वहाँ खड़ा रह गया था। और मरियम, वो एक पल के लिए भी उसके वजूद को महसूस करने को तैयार न थी। हवेली पहुँचते ही अहमर ने खुद को मसरूफ़ करने की कोशिश की, मगर उसके दिमाग में बार बार मरियम का पुरसकून चेहरा और उसकी बेनियाजी घूम रही थी। उसी अस्ना में फारूक शाह हवेली के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ओहो अहमर मियाँ, इतनी जल्दी लौट आए। मैं तो सोच रहा था मस्जिद में जाकर नेकी के सबक सुनोगे। अहमर ने उसे घूर कर देखा, मगर फारूक शाह अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? अहमर ने सख्त लहजे में कहा। फारूक शाह ने कहका लगाया, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस ये देख रहा हूँ कि जिसे तुमने छोड़ दिया था वो आज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मजबूत खड़ी है। तुम उसे कमजोर समझ के छोड़ गए थे और वो तुम्हारी वापसी पर एक पल के लिए भी मुतवज्जा नहीं हुई। बुरा लगा? अहमर ने बुरा मानने की कोशिश नहीं की, मगर फारूक शाह की बात सच थी, वो बदल गई है। अहमर ने सरगोशी की, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। हाँ, और अब तुम्हारे लिए इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं, फारूक शाह ने तंजिया अंदाज में कहा और चला गया। मगर अहमर हमदान वो शख्स नहीं था जो आसानी से पीछे हट जाता। मरियम का यूं नज़रअंदाज करना, यूं बेनियाजी बरतना, ये सब उसके गरूर के खिलाफ था। मुझे उससे बात करनी होगी, लेकिन क्या मरियम अब भी उससे बात करना चाहती है? अगले दिन अहमर मस्जिद के करीब जा खड़ा हुआ, जहां वो जानता था कि मरियम आएगी। जब वो बाहर निकली तो उसकी नज़र एक लम्हे के लिए अहमर पर पड़ी, मगर वो फौरन आगे बढ़ गई। अहमर ने तेजी से कदम बढ़ाए और उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। मरियम, वो चंद लम्हे रुकी, फिर धीरे से बोली, हट जाओ अहमर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब बात करने के लिए क्या बचा है? उसने संजीदगी से कहा। क्या तुम वाकई वही मरियम हो जिससे मैंने छोड़ा था? अहमर ने बेयकीनी से पूछा। मरियम की आंखों में गुजरे सालों का दर्द अब भी था, मगर वो कमजोर नहीं लग रही थी। हाँ, मैं वही हूँ, मगर मैंने तुम्हारी तरह माजी में जीना छोड़ दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और अहमर उसे जाता देखता रहा। ये मरियम वो नहीं थी जो 4 साल पहले अहमर हमदान की एक नज़र की मोहताज थी। ये मरियम अब खुद मुख्तार थी और अहमर को पहली बार शिकस्त का एहसास हो रहा था। अहमर हमदान जिंदगी में हमेशा हर चीज़ पर इख्तियार रखता आया था। दौलत, कारोबार, ताकत, सब कुछ उसके हाथ में था, मगर आज वो खुद पर काबू नहीं पा रहा था। गांव में मरियम को देखने के बाद वो हर पल उसी के बारे में सोचने लगा। वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि एक ऐसी लड़की जिसे वो खुद छोड़ चुका था आज उसके दिल में सवालात और इस तरह पैदा कर रही थी। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? वो हर मुमकिन तरीके से खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मरियम की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं, मगर हकीकत ये थी कि अब वो मरियम की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता था। मगर वो जानता था कि इतना आसान नहीं था। गांव में खबरें आम होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था और अहमर की परेशानी अब सबकी ज़ुबान पर थी। वो जहाँ जाता लोग सरगोशियाँ करने लगते। सुना है अहमर मियाँ मस्जिद के सहन में घंटों खड़े रहते हैं। बीवी को छोड़ा भी खुद और अब पीछे भी खुद ही फिर रहे हैं। मोहब्बत में गुरूर नहीं चलता जनाब। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात फारूक शाह की थी, जो किसी भी मौका को हाथ से जाने न देता। एक दिन जब अहमर हवेली के बाहर खड़ा था, फारूक शाह ने करीब आकर कहा, बीवी को छोड़कर गए थे, अब पीछे क्यों फिर रहे हो? अहमर ने तेज नजरों से उसे देखा, मगर फारूक शाह का अंदाज बेबाक ही रहा।
تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ احمد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ فاروق شاہ نے کہکا لگایا۔ تمہیں دیکھ کر انہیں وہی پرانی کہانی یاد آ رہی ہے، گئے وقت کی پشیمانی۔ احمد نے مٹھیاں بیچ لی مگر چپ رہا۔ یہ سب اس کے غرور کے خلاف تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مریم کے لیے احمد کا یوں گاؤں میں پھرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اپنی زندگی میں مگن تھی، بچیوں کو پڑھا رہی تھی، ماں کا خیال رکھ رہی تھی اور گاؤں میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ احمد اب اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ احمد نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اس سے بات کر سکے، مگر مریم ہر بار یا تو اسے نظر انداز کر دیتی یا خاموشی سے آگے بڑھ جاتی۔ ایک دن جب احمد نے اسے مسجد کے باہر روکا تو مریم کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مریم، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی احمد۔ احمد کے قدم وہیں رک گئے۔ یہی ایک جملہ اس کے غرور کے لیے کافی تھا، مگر وہ اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ احمد ہمدان جو کبھی کسی کے لیے نہیں جھکا تھا، اب مریم کے پیچھے بے اختیار ہو رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتا آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ کیا وہ مریم کو اپنی زندگی میں واپس چاہتا تھا، یا صرف یہ حقیقت کہ مریم نے اسے نظر انداز کر دیا اس کے غرور کو چیلنج کر رہی تھی؟ یہ سوالات احمد کو راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن جب احمد گاؤں کے کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا تو اسے کچھ عورتوں کی سرگوشیاں سنائی تھیں۔ بڑا افسوس ہوا تھا اس بیچاری مریم پر۔ شوہر نے تو جیسے طلاق کا اعلان ہی کر دیا تھا، لیکن دیکھو اللہ نے اس کے نصیب کو کتنا خوبصورت کر دیا، وہ آج سب سے معزز عورت بن چکی ہے۔ اور احمد، وہ شاید آج اپنی سب سے بڑی غلطی کو سدھارنے کے لیے لوٹا ہے۔ احمد کے قدم خود بخود رک گئے۔ احمد نے ہمیشہ مریم کو جاہل اور پینڈو سمجھا تھا، ایک ایسی لڑکی جس سے اس کی ضرورت تھی، مگر وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہا تھا کہ حقیقت میں کمزور وہ خود تھا۔ وہ اپنے غرور، اپنی ضد اور اپنی انا کے پیچھے چھپتا رہا تھا، مگر مریم نے اس سب سے نکل کر خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ احمد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہی لڑکی جسے وہ بے یقینی سے چھوڑ کر گیا تھا، ایک دن اس کے سکون کو اس قدر برباد کر دے گی اور وہ اسے پانے کے لیے اس قدر مچلنے لگے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، گاؤں کی سڑکوں پر خاموشی تھی، مگر احمد ہمدان کے اندر ایک شور برپا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ خود کو اپنی ہی نظر میں شکست کھورتا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے مریم کے ساتھ غلط کیا، یہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ہمیشہ صحیح تھا، کہ دنیا اس کے اصولوں پر چلتی تھی، مگر مریم نے ثابت کر دیا تھا کہ زندگی صرف غرور اور طاقت سے نہیں بلکہ عزت اور صبر سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج قدم نہ بڑھایا تو وہ ہمیشہ کے لیے مریم کو کھو دے گا۔ صبح کا سورج نکلا اور مریم مسجد سے درس دے کر گھر واپس آ رہی تھی کہ احمد نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا۔ مریم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں سختی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، احمد نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو۔ تو مریم نے مختصر سا جواب دیا، جیسے یہ اعتراف اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ مریم نے گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کی آنکھوں میں سچائی کو جانچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، معاف کر دوں؟ کس بات کی معافی احمد؟ احمد خاموش ہو گیا۔ اس بات کی کہ تم نے میری بے گناہی کے باوجود مجھے چھوڑ دیا، یا اس بات کی کہ تم نے ایک لمحے میں مجھے بدنامی کی چادر میں لپیٹ کر اپنی زندگی سے نکال دیا، یا پھر اس بات کی کہ تم نے کبھی پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں؟ احمد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ احمد، تم نے 4 سال میری کمی کو محسوس کیے بغیر گزارے، اب تمہیں میری ضرورت کیوں ہے؟ یہ جملہ احمد کے دل پر ایک چوٹ کی طرح لگا۔ احمد کو ایسا محسوس ہو چکا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مریم وہی معصوم لڑکی نہیں تھی جس سے وہ ایک لفظ میں دھتکار سکتا تھا۔ اب وہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو اپنی عزت اور خودداری کے ساتھ کھڑی تھی، مگر احمد ہار ماننے والا نہیں تھا۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی مریم۔ کیوں؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو تم نے سننے کی زحمت نہیں کی، اب میں کیوں سنوں؟ احمد نے گہری سانس لی، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی چیز کے لیے خود کو بے بس محسوس کیا ہے۔ مریم نے نظریں اٹھائیں، مگر اب بھی اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا مریم، مگر میں تمہیں یہ احساس ضرور دلاؤں گا کہ میں صرف اپنے غرور کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ رات کا سناٹا تھا، مگر احمد کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنے فیصلوں پر قائم رہتا تھا، آج اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اپنی محبت کو پانے کا فیصلہ۔ اسے اپنے ماضی کے فیصلوں پر پچھتاوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ صرف پچھتاوے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اسے مریم کو دل تک دوبارہ پہنچنے کے لیے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ احمد نے آئینے میں خود کو دیکھا۔
वही मगरूर अहमर हमदान जिसने कभी अपनी अना के आगे किसी को कुछ न समझा था, आज अपनी मोहब्बत के आगे सर झुकाने के लिए तैयार था। मुझे मरियम चाहिए, न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने हर लम्हे में। ये पहला मौका था जब अहमर हमदान किसी को खोने के खौफ में जी रहा था। ये शाम आम शामों जैसी नहीं थी। गांव के चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के मर्द सरगोशियों में मसरूफ थे। औरतें दरवाजों से झांक रही थीं और बच्चे हैरानी से देख रहे थे कि अहमर हमदान सबके सामने क्यों खड़ा है। नबीला बेगम की आंखों में बेयकीनी थी, मगर वो खामोशी से अपने पोते को देख रही थी। उसी लम्हे मरियम मस्जिद से निकलकर वापस आ रही थी। उसने लोगों की भीड़ देखी तो एक लम्हे के लिए रुक गई। उसकी नजरें उस शख्स पर जा ठहरी जिसने उसे छोड़ दिया था, जिसने उसकी मोहब्बत को एक लम्हे में ठुकरा दिया था, मगर जो आज सबके सामने खड़ा था। अहमर ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में बोला, मैं अहमर हमदान सबके सामने एतराफ़ करता हूँ कि मैंने मरियम के साथ जुल्म किया। ये अल्फाज जैसे पूरी फजा में गूंज उठे। मैंने अपनी बीवी को छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। मैंने उसे कमजोर समझा, हालांकि वो सबसे ज्यादा मजबूत निकली। मैंने उसकी इज्जत पर उंगली उठाई, हालांकि वो सबसे ज्यादा बावकार थी। गांव के लोग हैरत से उसकी बातें सुन रहे थे और आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं मरियम को अपनी जिंदगी में दोबारा अपनाना चाहता हूँ। मरियम, क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी? क्या तुम मुझे वो इज्जत देने का मौका दोगी जो मैंने तुमसे छीन ली थी? मरियम ने अहमर की बात सुनी और एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके दिल में जज्बात का एक तूफान उठा, मगर वो खुद पर काबू रखे खड़ी रही। ये वही अहमर था जिसे उसने कभी ख्वाबों में देखा था, जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था, मगर जिसने उसे सबके सामने छोड़ दिया था। क्या वो दोबारा उसी आग में कदम रखे? गांव वालों की नजरें मरियम पर थी, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई अहमर को माफ कर सकती हूँ? वो आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। अहमर, तुम जानते हो कि मैं 4 साल पहले तुम्हारी मोहब्बत में बर्बाद हो चुकी थी। अहमर की सांस रुकने लगी, मगर मरियम ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत में इज्जत और हिफाजत है तो मैं तैयार हूँ। अहमर की आंखों में नमी आ गई और वो बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ा। मरियम, मैं वादा करता हूँ कि आज से मेरी मोहब्बत में इज्जत होगी, हिफाजत होगी और तुम्हारी जगह हमेशा मेरे दिल में होगी। हवा में जैसे मोहब्बत की खुशबू फैल गई। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। गांव की हवाएं आज पहले से ज्यादा खुशबूदार लग रही थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मरियम हमदान। आज वो लम्हा आ गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर जो तकदीर ने लिख दिया था। मरियम एक बार फिर अहमद की दुल्हन बन चुकी थी, मगर इस बार अपनी इज्जत, वकार और मोहब्बत के साथ। गांव में एक शानदार तकरीब हुई जहां न सिर्फ अहमद की दादी नबीला बेगम ने खुद मरियम को दुल्हन का दुपट्टा पहनाया, बल्कि पूरे गांव ने इस रिश्ते को कबूलियत दी। अहमद ने सबके सामने ऐलान किया, आज मैं अपनी बीवी को सिर्फ हवेली नहीं बल्कि अपने दिल में उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ उसका हमेशा से हक था। और फिर एक शानदार बारात के साथ जिसमें गांव के सब मुअज़्ज़िज़ीन शरीक थे। अहमद अपनी मोहब्बत को, अपनी इज्जत को, अपनी जिंदगी को अपनी हवेली ले गया। जब मरियम ने हवेली में कदम रखा तो वही दरो दीवार जो कभी उसके लिए अजनबी थे, आज उसे खुश आमदीद कह रहे थे। फर्श पर गुलाब की पत्तियां बिछाई गई थी, हवेली जगमगा रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। ये वही जगह थी जहां उसे कभी तन्हा छोड़ दिया गया, मगर आज वो इसी जगह दुल्हन बन के फख्र और मोहब्बत के साथ वापस आई थी। नबीला बेगम ने एक लम्हे को मरियम को देखा और फिर धीरे से उसकी पेशानी को चूमा। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। आज वो मोहब्बत के साथ इस घर में दाखिल हो रही थी, न कि बेयकीनी के साथ। रात का सन्नाटा था, मगर अहमद और मरियम के दिलों में जज्बात का तूफान बरपा था। अहमद ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, फिर पलटकर अपनी दुल्हन को देखा। मरियम सफ़ेद लिबास में नजरें झुकाए, मगर उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। क्या तुम डर रही हो? अहमद ने मदम मगर गहरी आवाज़ में पूछा। मरियम ने सर उठाया और उसकी आंखों में झिझक भी थी और एक अनजानी कशिश भी। डर? मरियम ने धीरे से सर हिलाया। अब नहीं अहमद। अहमद ने एक पल को नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी, फिर धीरे से उसकी थोड़ी को अपनी उंगली से छुआ और नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने तुम्हें खोने के बाद जाना कि तुम क्या हो, और अब तुम्हें पाकर कभी नहीं खोना चाहता मरियम। मरियम का दिल जैसे किसी सास की मानिंद धड़कने लगा। उसने अहमद को 4 साल बाद इतना करीब पाया था, मगर आज का अहमद वो नहीं था जो 4 साल पहले था। आज उसकी आंखों में गुरूर की जगह मोहब्बत थी, सख्ती की जगह नरमी थी और फासलों की जगह बेताबी। अहमद ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मरियम को लगा जैसे वक्त थम गया हो। ये लम्हात सिर्फ जिस्म की कुर्बत के नहीं थे, बल्कि 2 दिलों के मिलने, 2 टूटे रिश्तों के जुड़ने और मोहब्बत की मुकम्मल तस्लीम के लम्हे थे। अहमद ने नरमी से
اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جیسے برسوں کی جدائی کا ہر درد اسے ایک لمس میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم، پہلے بھی کرتا تھا، مگر تب میں اپنی انا میں تھا، آج میں صرف تمہارا ہوں، مکمل تمہارا۔ مریم کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس میں کوئی غم نہ تھا، صرف محبت کی شدت تھی۔ اور میں ہمیشہ تمہاری تھی احمر، چاہے تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، مگر میرا دل ہمیشہ تمہارا ہی تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے خود کو احمر کی حصار میں مکمل طور پر سونپ دیا۔ وہ رات جس میں جذبات اپنے عروج پر تھے، جس میں محبت انا پر حاوی ہو گئی تھی، اور جس میں دو دل ایک دوسرے میں سمٹ گئے تھے۔ احمر نے اس رات مریم کو صرف اپنایا نہیں، بلکہ اس کی ہر ٹوٹی یاد، ہر بکھری ہوئی خواہش کو سمیٹ کر اسے مکمل کر دیا۔ یہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، بلکہ عشق کی وہ منزل تھی جہاں نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی جدائی، صرف مکمل قبولیت تھی۔ اب کوئی جدائی نہیں ہوگی مریم، اب صرف ہم ہوں گے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ان کی چھوٹی سی زندگی ایک شاندار محبت بھرے انجام کے ساتھ مکمل ہوئی۔